Hello everyone, welcome to TQ Gate classes, an initiative by TQ faculties. My name is Nihit Bhatnagar. I have IIT Gwalior in digital communication. I have qualified GATE exam 6 times. At present, I am working as an assistant professor at SATA Vidisha, Madhya Pradesh. I have more than 4 years teaching experience. So this is the sixth lecture of the lecture series of random variable and random process. At yesterday we are at this question, so today we will discuss this question. I am going to take this question. Okay, so the question is like that, x and y are two independent random variables with variances 1 and 2 respectively. It means आपको दे रखा है x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हैं और जिनकी वेरिएंस रेस्पेक्टिवली 1 एंड 2 है, एंड z let z equal to x minus y, then the variance of z is, अगर z आपको नया रैंडम वेरिएबल जो दे रखा है इस तरह की x माइनस वाई, देन वेरिएंस ऑफ z इज, आपको z का वेरिएंस फाइंड करना है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2018. ओके, सो जैसे कि डेफिनेशन दे रखी है कि x एंड y टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है. ओके, इसका भी कहीं यूज होगा. एंड वेरिएंस दे रखा है इनका, तो आपको क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर. आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर दे रखा है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना दे रखा है आपको, ये आपको 1 दे रखा है. एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर इट मीन्स मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, इट मीन्स मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई का स्क्वायर, एंड दैट इज 2. आपको ये दे रखा है. ओके, नाउ आपको फाइंड क्या करना है, आपको वेरिएंस निकालना है जेड का. तो लेट्स डिफाइन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल जेड, सिग्मा जेड स्क्वायर. ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड एंड होल स्क्वायर. ओके, now you can put the value of z from here, you can put the value of z from here. Okay, so it's equal to expectation of x minus y whole square minus expectation of x minus y whole square. Okay, then अभी जो होल स्क्वायर है हम इसको ओपन करेंगे, तो वी विल ओपन दिस होल स्क्वायर. तो अंडर द एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन, तो होल स्क्वायर व्हेन दिस होल स्क्वायर will open, then this will become x square plus y square minus का 2xy, then bracket 1 minus, then you know very well that expectation of x plus y, your plus minus y is equal to expectation of x plus minus expectation of y. So it is follow the distributed law. So expectation of x minus y, it's become expectation of x minus expectation of y and its whole square. Okay, then you know very well again the expectation follow the distribution law, that's why it will break. ये सब पे इंडिविजुअल आएगा. So expectation of x square plus expectation of y square minus expectation of 2xy,
and then minus bracket, and then I have to, this is a and this b, and a minus b whole square, that's become expectation of x whole square, then plus expectation of y whole square, then minus 2 expectation of x and expectation of y. Okay, yes. Okay, so again sigma z square, so it will become, now I open all the expression, expectation of x square plus expectation of y square minus 2। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, अभी टू कांस्टेंट है, टू बाहर आ जाएगा आपका, ये टू कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, इट मीन्स ये टू आपका बाहर आ गया। ओके, तो टू आ गया, एंड फॉर एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। ओके, सो there is a topic will come when we discussed 2D random variable, two dimensional random variable. So there is a the statistical average of two dimensional variable is covariance and correlation coefficient. In this a property will come, it will discuss when we ये आएगा तब जब हम इसको 2D random variable पढ़ेंगे। For the meanwhile, for the this question you just remember this property, the mean of expectation of two random variable, expectation of xy is equal to expectation of x into expectation y if and x and y both are independent, if both are independent। अगर x और y दोनों इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई क्या हो जाता है आपका, एक्सपेक्टेशन x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो दिस प्रॉपर्टी विल कम एज we will discuss 2D random variable। Okay, so meanwhile for this question you just remember this property, so this expectation of here this this expectation x xy, it will become expectation x into expectation of y। Okay, then minus, it will become expectation of x whole square minus whole square expectation of y, then this minus and this minus, this minus and this minus will become plus, that will become plus, that will 2 expectation of x into expectation of y। Okay, now this term and this term will cancel each other। ठीक है, this will happen because x and y are both are mutually independent, that's why this will occur, and this property we will discuss in 2D random variable। So meanwhile for this question just remember this। Okay, sigma z square, it's equal to, it's equal to now club the information for this to this, हम एक साथ लिखेंगे तो दिस विल बिकम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ओके, देन क्लब दिस इक्वेशन एंड sorry, so first and second, club these equations, so expectation of y square minus expectation of y whole square। Okay, this term will become sigma x square and this term will become sigma y square plus sigma y square। So what is the value of sigma x square, it is equal to 1, and what is the value of sigma y square, it is equal to 2, and that is equal to 3। So correct answer is option D, the correct answer is option D। So I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Now our next topic is spatial distribution function।
Our next topic is spatial distribution function. Okay. In this series, the first distribution function is binomial distribution function. In this distribution function, it consists of only two events. इसमें दो इवेंट होते हैं, either success और failure. either success और failure. दो इवेंट एक एट ए टाइम एग्जिस्ट करते हैं. ओके, या तो फेलियर होगा या सक्सेस अगर होगी. ओके, now if the probability of event occur means success. Here success is our success means यहाँ सक्सेस मतलब है हमारा इवेंट टू बी अकर. इवेंट टू बी अकर, इवेंट टू बी अकर मतलब जो इवेंट होना चाहिए उसको हम सक्सेस, ठीक है, डिनोट कर. जो हमारा कंसर्न है उसको पी से, स्मॉल पी से, उसकी प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट कर रहे हैं. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट डज नॉट अकर मीन्स फेलियर. ठीक है, जो एक तो वो इवेंट है जो हमारा इवेंट ऑफ कंसर्न है. दूसरा एक ऐसा इवेंट जो नॉट अवर कंसर्न है, तो उसको हम फेलियर बोल रहे हैं. उसकी प्रोबेबिलिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वन माइनस पी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो एंड सक्सेस एंड फेलियर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इट मीन्स ये दोनों म्यूचुअली, इन दोनों इवेंट सक्सेस और फेलियर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट नहीं करते. इनमें कोई कॉमन थिंग नहीं है. दैट्स व्हाई पी प्लस क्यू इक्वल टू वन. पी प्लस क्यू इक्वल टू वन. अगर पी अगर हो तो क्यू नहीं होगा, क्यू हो रहा तो पी नहीं होगा. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, सबसे आइडेंटिटी क्या होती है कि इसमें ओनली टू इवेंट होते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप एक एग्जांपल, आप किसी कॉइन को टॉस करें. आप जब किसी कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. एट ए टाइम हेड टेल दोनों साथ नहीं आ सकते. तो इस, ठीक है, अगर जैसे अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है और किसी टीम ने टेल पे, ठीक है, टेल को चूज किया है, सो उस टीम के लिए अगर उसको फर्स्ट टॉस जीतना है, ठीक है, तो टेल उसके लिए सक्सेस हो जाएगी एंड हेड जो होगा उसके लिए फेलियर हो जाएगा. ओके, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मतलब आइडेंटिटी की, इसमें एट ए टाइम दो इवेंट होंगे. इसको ऐसे भी समझ सकते हैं एक एग्जांपल से कि आपने एक डाइस को थ्रो किया. ओके, डाइस में 1 to 6 नंबर्स होते हैं. ठीक है, आपको, ठीक है, सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको 6 अकर होगा. सक्सेस तभी आपको मतलब कंसीडर की जाएगी जब आपको 6 अकर होगा. ओके, एट नॉट 6, अदर देन 6 कुछ भी हो तो वो फेलियर कंसीडर होगा. इट मीन्स इसमें दो इवेंट है, अदर 6 अकर और नॉट अकर. So other than 1 to 5 number, it will consider in failure. So that's why there are two events. So we denote the success as a P or failure as a Q, that is 1 minus P. And आपने डाइस थ्रो की तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा, लेकिन दोनों चीज साथ पॉसिबल नहीं. दैट्स व्हाई P and Q both, the probability of P and Q, sorry, the event success and failure is are mutually एक्सक्लूसिव, मतलब ये साथ आकर नहीं होंगे. ओके, अब क्या, जैसे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सक्सेस इन एन ट्रायल्स. मान लीजिए आपने एन टॉस किए कॉइन के, ठीक है, और उसमें से आपको आर टाइम्स जो है ना आपकी सक्सेस लाइक हेड मिला. ठीक है, तो so n for the then the probability of r success n trial, that is equal to px equal to r, that is equal to ncr p की पावर r q n minus r. ncr p की पावर q n minus r, q रख दोगे तो ये बन जाएगा आपका ncr p की पावर r 1 minus p की पावर n minus r. अब r जो है आपके 0 1 2 3 अप टू जितने n अप टू n तक आपके वो है, आपकी सक्सेस की रेंज है. ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि ये इसमें दो ही इवेंट आपके एग्जिस्ट करते हैं, सक्सेस और फेलियर. और
जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके दोनों सक्सेस और फेलियर दोनों आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, दोनों साथ एग्जिस्ट नहीं करते। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n success in n trial, that is equal px equal to r, that is equal to ncr p की power r q n minus r, ncr p की power r q n minus r. Okay, now we move toward the properties of binomial distribution. Okay, the first property is that a mean is equal to n into p. The mean of this binomial distribution equal to n into p. The standard deviation of binomial distribution is equal to npq, root over npq. अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस क्या होगा इसका, वेरिएंस and that is equal to x sigma x square if x is the random variable and follows the binomial distribution, that is equal to npq. तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द मोड इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज मैक्सिमम. मोड जो होती है वो x की वैल्यूज या x की वो वैल्यू, सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज x की, जिस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x मैक्सिमम हो. तो इसे x को क्या, इस वैल्यू x की इस वैल्यू को बोलते हैं मोड, मोड या मॉडल वैल्यू. अब फॉर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप करंट सिचुएशन को समझ सकते हैं, जैसे पेंडेमिक चल रहा है कोविड का. ओके, तो आपने सुना होगा पीक आएगा, इसका मैक्सिमम पीक आएगा. तो जो पीक आता है, इट मीन्स पीक का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ऑफ इन्फेक्शन किस महीने किस टाइम पे देखे जाएंगे, मतलब कब देखे जाएंगे और किस डेट पे देखे जाएंगे और कितने आएंगे. तो जो डेट आती है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पीक कब आएगा, तो ये पीक जो होता है ना इस कोविड केस में, ये इसकी मोड वैल्यू है. ये इसकी क्या है, मोड वैल्यू और मॉडल वैल्यू है. ओके, तो जितने भी कोविड जैसा जो अभी रिसेंट सिचुएशन चल रही है कोविड की, जो स्टेटिस बनती है कि ये ना पीक कब आएगा, कब इसका स्लोप है, कभी सेटल होगा, कभी डाउनफॉल आएगा, तो ये सब जो चीज़ होती है ये सब इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ही डिफाइन होती है. इनके थ्रू इनकी कैलकुलेशन होती है कि पीक इस डेट को आएगा, इस ड्यूरेशन के बीच में मैक्सिमम पीक अगर होगा, थर्ड वेव कब आएगी, सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सब चीज़ें रैंडम है तो इनकी कैलकुलेशन आपकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी के थ्रू होती है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू ही होती है. ओके, सो द मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच px इज मैक्सिमम. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, इसमें मोड एक्सिस अंडर द कंडीशन, ये इस कंडीशन पे मोड आपका एग्जिस्ट करता है. मोड कब एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए आर आपके आल सक्सेस के ट्रायल्स हैं, तो मोड जो होगा आपका वो होगा n+1 ब्रैकेट में p. इसको हम कई बार m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, m से n-1, तो दैट्स वाई -1 टू n+1 इंटू p इंटू, तो ये बन गया आपका m. तो -m टू m के बीच में इसकी वैल्यू, इसकी रेंज एग्जिस्ट करती है. और m की वैल्यू क्या होती है, n+1 इंटू p. ओके, अब n+1 p इज एन इंटीजर, इट हैज़ टू मोडल वैल्यू. इट मीन्स अगर आपका n+1 इंटू p ये आपका इंटीजर है, तो इसमें टू वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दो वैल्यूज, पहली होगी m, दूसरी होगी m-1. तो m क्या है आपका n+1 इंटू p और m-1 इज इक्वल टू n+1 इंटू p-1. ओके, और इफ n+1 इज नॉट इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपकी एक ही यूनिक मॉडल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू m, और इट इज इक्वल टू मॉडल वैल्यू, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ n+1. मतलब n+1 इंटू पी को आप फाइंड करें, उसका इंटीजर पार्ट ले लें. अगर ये पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आपको जस्ट डिफाइन कर रहा है कि ये इंटीजर नहीं है, तो इसका इंटीजर पार्ट ही आपका मॉडल वैल्यू होगा. अब इस चीज़ को क्वेश्चन से लेते हैं, आपको और ढंग से क्लियर होगा. पहला क्वेश्चन है, द फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन इन 100 टॉसेस. फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ हेड्स, कि मैक्सिमम हेड कितने, अगर 100 टॉस कर रहे हैं, मतलब एन आपका कितना है, 100 है, एन 100 है, तो ये पूछ रहा है कि 100 टॉसेस में मैक्सिमम हेड कब अकर होगा. तो मैक्सिमम हेड अकर है मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, इट मीन्स ये पूछ आपसे वापस मॉडल वैल्यू ही पूछ रहा है, मॉडल वैल्यू ही पूछ रहा है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, n+1 इंटू पी, इसको डिफाइन करेंगे. अभी चेक करते हैं कि इंटीजर है या नहीं है. ओके, अब हेड आ रहा है,
आपका इवेंट ऑफ कंसर्न क्या है, हेड, एंड हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इट इज इक्वल टू हाफ, हाफ होता है क्योंकि हाफ प्रोबेबिलिटी इधर की हेड अगर होगा, हाफ प्रोबेबिलिटी की टेल अगर होगा। तो इससे आप फाइंड करते हैं, तो एन कितना आपका 100 प्लस 1 इंटू पी कितना आपका हाफ, तो इट इज इक्वल टू 101/2 दैट इज इक्वल टू 50.5। तो आप देख सकते हैं कि 50.5 प्लस 1 पी जो उसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया था इज नॉट इंटीजर एंड इंटीजर। तो जो मॉडल वैल्यू जो होगी ना वो यूनिक होगी, इट कंटेन्स unique model value, that's why, and that is m is equal to integral part of n plus 1 into p. So part n plus what is the value, 50.5, it means 50, इट मीन्स आपके 100 में से 50 जो टॉसेस होंगे उसमें आपको मैक्सिमम टाइम्स हेड अकर हेड मिलेगा, आपको 50 टाइम्स हेड अकर होगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो मोड क्या होता है, मॉडल क्या होती है, मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट ईसी 2007। ये क्वेश्चन गेट ईसी 2007 में पूछा गया था। सो द during the transmission over certain binary communication channel। अब बाइनरी कम्युनिकेशन चैनल, ये जो टॉपिक है आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी में आएगा। ये टॉपिक आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन थ्योरी की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप इसको उसके बिना उसके भी कर सकते हैं। द बिट एरर अकर्स इंडिपेंडेंटली। जैसा क्या है कि आपने कि कुछ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स आपने ट्रांसमिट की, तो हर बिट में जो एरर अकर हो रही है वो इंडिपेंडेंट अकर हो रही है, वो डिपेंड नहीं कर रही किसी दूसरी बिट पे डिपेंड नहीं कर रही, विथ प्रोबेबिलिटी पी। इट मीन्स क्या, हर बिट में जो एरर अकर हुई है उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी वो पी है, और वो इंडिपेंडेंट है, मतलब एक बिट दूसरे बिट पे डिपेंड नहीं कर रही। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट, मतलब एक से ज्यादा, द probability of at most one bit error in a block of n bits is given by। जैसे आपका ये n ब्लॉक है, आपके ब्लॉक्स हैं कुछ 1 से 2 से लेकर अप टू आपके n ब्लॉक्स हैं, मतलब n ट्रायल्स हैं आपके इसमें। ओके, इंडिपेंडेंट है। ओके, और गेटिंग एरर दैट इज पी। इट मीन्स इसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी पी, इसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी पी, या फिर एरर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू, एरर नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्यू, दैट इज इक्वल टू एन क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो एन ब्लॉक्स हैं आपके उसमें एटमोस्ट वन बिट एरर, ज़्यादा से ज़्यादा एक बिट में होने वाली एरर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। सो क्वेश्चन दैट कि एटमोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन बिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन बिट एरर, मतलब इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है आपका एटमोस्ट, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एरर, या तो बिल्कुल एरर नहीं है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बिट एरर। एटमोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, मैं मैक्सिमम वन बिट एरर हो सकती है, तो या तो क्या हो जाएगा, तो नो एरर और वन बिट एरर। ओके, अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। ओके, अभी देखिए इसमें तो एरर अकर होगी या अकर नहीं होगी, तो इट मीन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऐसा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा,
आप देख भी सकते हैं जो ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, आपको कुछ इस फॉर्म में दे रखे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 1। तो अच्छा आपको पता है फॉर्मूला कि फॉर्मूला क्या यूज होता है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू एन माइनस आर। ओके सो ओके आई एम राइटिंग हियर फॉर आर इक्वल टू 0, तो एन सी 0 p to the power, p means the here p means bit error, bit error। तो p to the power मतलब कोई भी एरर नहीं हो रही, देन 1 माइनस p to the power 1 माइनस p, q इक्वल टू 1 माइनस p to the power n माइनस 0, देन प्लस 1 बिट एरर मतलब एन सी 1 p to the power 1 and 1 minus p to the power n minus 1, so it will become nc0 is equal to 1 and p to the power is also 1, p to the power is also 1, it's also 1, and 1 minus p to the power n, it is 1 minus p to the power n, plus nc1 is n p to the power 1 and 1 minus p to the power n minus 1. So the as per the, you can see n p into 1 minus p to the power n minus 1. Okay, this here this term, and 1 minus p to the power n, 1 minus p to the power n. So correct option is of this question is C. So very simple question. Now इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ओवर अ सर्टेन बाइनरी कम्युनिकेशन चैनल ए बिट एरर अकर इंडिपेंडेंटली हो रही है विद प्रोबेबिलिटी पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट मतलब कम से कम एक होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इट कैन बी वन और मोर देन वन। ओके, वन बिट एरर इन ए ब्लॉक ऑफ एन बिट्स, वन बिट एरर इन ए ब्लॉक ऑफ एन बिट्स। सो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो ठीक है, तो आपको जो दे रखा है कि पूछा गया है एटलीस्ट मतलब एक भी हो सकता है, प्लस दो भी हो सकता है, प्लस पी एक्स इक्वल टू एन मतलब एन भी हो सकता है, मतलब सारे हो सकते हैं। अब इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, आप क्या अगर वन माइनस कर दें, अब अदर देन क्या हो सकता है, एटमोस्ट हो सकता है, अदर देन नहीं सॉरी, अदर देन क्या हो जाएगा आपका एटलीस्ट वन, इसका काउंटर पार्ट क्या हो सकता है, नो एरर। देखिए नो एरर मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, इसका काउंटर पार्ट क्या होगा, नो एरर, दैट्स व्हाई पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये तो होता है आपकी एटलीस्ट, एटलीस्ट ये शो कर रहा है नो एरर। एटलीस्ट का मीनिंग होता है आपका मोर देन वन, सॉरी वन और मोर देन वन, इतना तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसका काउंटर पार्ट होगा कुछ नहीं हो, तो वन माइनस, अब यहाँ आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है, तो एन सी 0 पी टू द पावर 0 and 1 minus p to the power n minus 0. Okay, that will become 1 minus nc0 is 1, p to the power 0 is 1, and 1 minus p to the power n, and that is equal to 1 minus p to the power n. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज और कुछ होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज, बेस चेंज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a binary a binary source generate the digit 0 and 1, a binary source है वो 0 1 जनरेट कर रहा है randomly with probability 0.6 and 0.4 respectively, with probability 0.4 and 0.6 respectively, so it means getting 1 its probability 0.6 and getting 0 its probability 0.4. Okay, what is the पहला part, what is the probability that
2 ones and 3 zero will occurs in 5 digit sequence. तो आपसे पूछ रहा है कि क्या what is the probability that 2 ones and 3 zeros will occur in 5 digit sequence. तो 5 digit के सीक्वेंस में 2 ones आ जाए और 3 zeros आ जाए. तो ओके, लेट्स से 1 जो आ रहा है हम इसको सक्सेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सक्सेस जिसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जीरो जो होता है आप इसको फेलियर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसको वाइस वर्सा ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, इसको क्यू से या फिर इसको 1 माइनस पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देन, what is the probability that at least, sorry, what is the probability that 2 ones and 3 zeros will occur. So here probability of x, अब 2 ones आना चाहिए, मतलब x equal to 2 आ जाएगा. it means r equal to 2 आ गया. so it will become nc2 nc2. अब n कितना है यहाँ पर, कितना है n, 5 डिजिट है, 5 डिजिट, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी. n कितना आ गया आपका, 5 आ गया. ओके, n 5c2 ncr p is 0.6 to the power 2 and q is 0.4, 6 and 0.4 to the power कितना आ जाएगा, 5 minus 2 that is equal to 3. तो 5c2 0.6 to the power 2 and 0.4 to the power 3. और ये 5c2 को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 0.6 टू द पावर 2 एंड 0.4 टू द पावर 3. सो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा करीब 0. that will become 0.23. then part b, what is the probability that at least 3 times once will occur. At least means one or more than one, it means probability of getting 3 times 1. At least means 3 times 1 plus it may be 4 times 1, it may be 5 times 1. so हम देख सकते हैं, here r equal to 3, r equal to 4 and here r equal to 5. so it will become, and n equal to 5 here, so 5 c3 and the p is 0.6 to power 3 and 0.4 to power 2. okay, then 5c4 0.6 to the power 4 and 0.4 to the power 1. then 5c5 0.6 to the power 5 and 0.4 to the power 0. so अब आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे, इट्स वेरी, जो सॉल्व करेंगे तो ये, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.683, 0.683. so this in how many number of throws of a dice, in how many number of throws of a dice the probability of getting 6 at least one, just get in 0.5. मतलब किसी डाइस को आपने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ थ्रो, कितने मिनिमम नंबर ऑफ थ्रो की जरूरत हो एक डाइस को थ्रो करने की जिससे आपको 6 अचीव हो जाए एटलीस्ट एक बार, एटलीस्ट 1. सो गेटिंग 6 is success and not getting is failure, and success means p and failure means q. so getting 6 is success and not getting 6 is failure. okay, so 6 जो है, ठीक है. ओके, तो एटलीस्ट वंस मीट, एटलीस्ट वंस मतलब तो एक बार आ जाए, 1 टाइम 6 आ जाए, और 2 बार 6 आ जाए, अप टू जितने भी, अप टू प्लस चलता जा रहा है ये, अप टू जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे हैं उतने बार 6 आ जाए. ओके,
अब इसका काउंटर, अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये सीरीज बन रही है, तो मैं क्या करता हूँ इसका, अब नाउ वी आर डूइंग द काउंटर पार्ट। इट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कोई सिक्स नहीं आया, एक बार में वन माइनस, नो सिक्स, नो नंबर सिक्स विल अकर, and its probability is getting equal to 0.5. It is given that its probability is getting 0.5. Okay, 1 minus n c0 p to the power 0 and 1 minus p to the power n minus 0, that is equal to 0.5 n c0 1 minus, अब आप क्या करें, इस टर्म को इधर लेके आए, इस टर्म को इधर यहाँ लेके आए, तो 1 माइनस 0.5 is equal to nc0 is equal to 1, p to the power 0 is also 1, and 1 minus p to the power n, 1 minus p to the power n. Okay, so 1 minus 0, so now here 1 minus 0.5 is equal to 0.5. Okay, is greater than 1 minus p to the power n. अब आप देख सकते हैं get is 6, this has probability 1 by 6 because there are 6 number, and to get 6 is 1 by 6, and not getting 6 is 5 by 6. Okay, so p that is equal to 1 minus q, that is 5 by 6, that is also equal to 1 minus p, so 0.5 is greater than 5 by 6 to the power n. Okay, now take the log both side, log 10 base both side, so 0.5 log 10 base, that is greater than n times log 10 base 5 by 6. Okay, so after solving this you will get n greater than 3.8, n is 3.8, the n should be greater than 3.8, so values of n are like 4, 5, 6, 7 up to 6. So the minimum value of throws, minimum number of throws that will get at least, that will at least one 6, it is 4, that is 4. So here the n equal to, minimum value of n is 4, so correct answer is, for this question is 4. So the another distribution function is Poisson distribution function. Poisson distribution function is a special case of binomial distribution when probability of occurrence of or probability of success are very less. It means the n is very greater than p, or you can say that uh, there is a very less probability of occurrence in n number of trials. So the value of r is very less. In this random variable is called Poisson distribution random with parameter m, that is np, and that is also getting equal to 0, and that's why np is getting 0 because p is a probability, n is the number of trials, and multiply, then they always get in 0 because probability can net is never negative, and number of tries is a number, it also never get negative. Okay, that's why m equal to np, and that is getting equal to 0 for the for the for the for in n trials are uh, are success, number of success, are number of success.
So probability of getting x equal to e to the power m, e की power m, m to the power r upon factorial, where r from 0 1 2 3 up to n. ओके, अच्छा एक चीज समझ सकते हैं ये जैसे समझिए कि ना अभी जो the binary source generates bits 1 and 0 randomly with the probability 0.4 0.6, and what is the probability that two ones or three zeros will occurs in 5 sequence. इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया. Now the probabilities become probability of getting 1 is 0.001, and remaining is the probability of getting 0, and the 5 digit sequence now it becomes 10 to power 5 digit sequence. So it means n here is 10 to power 5. It means 10 to power 5 मतलब आप देख सकते हैं कितने मतलब, हाँ ओके, इतने तो ब्लॉक्स हैं और इस इन ब्लॉक्स में वन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इट इज 0.001. तो इस केस में इस कंडीशन में कि जब ट्रायल्स तो बहुत ज़्यादा है और सक्सेस अकर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका वो फेल हो जाता है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फेल हो जाता है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता. यहाँ हम यूज़ करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ओके. तो एग्जाम में क्वेश्चन है दोनों के, क्योंकि दोनों में एक ही चीज होती है सक्सेस, दोनों में भी इवेंट एक ही होते हैं आइदर सक्सेस और फेलियर. तो कैसे पहचाने कि ये पॉइजन से होगा, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा या फिर ये बाइनोमियल से होगा. तो आप ये एक चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट के करीब है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस सक्सेस इज वेरी वेरी लेस, तो इस केस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे. अभी जो क्वेश्चन था आपका, इसको आप पॉइजन से भी सॉल्व कर सकते हैं. आंसर नियरली मतलब आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स में कुछ अंतर होगा, बाकी आंसर आपका सेम आएगा. तो आई होप आप समझ ये चीज़ आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कब बाइनोमियल यूज करना है, कब पॉइजन यूज करना है. ओके, इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन आपका एम होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रूट एम होता है. तो वेरिएंस कितना हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर. अगर आप एक्स आपका रैंडम वेरिएबल जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है उसका ये कितना हो जाएगा, एम आ जाएगा. अब अगेन वही चीज मोड वैल्यू, दो मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स मैक्सिमम. अब जो लाइन लिखी हुई है कि इन द पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मोडल वैल्यू एक्सिस्ट अंडर द कंडीशन, ये इस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगी अगर आपके एन एन ट्रायल्स हैं, आपके एन ट्रायल्स हैं एंड इसमें आर एच सक्सेस है, आपको आर नंबर ऑफ टाइम्स, आपको आर नंबर ऑफ टाइम्स आपको सक्सेस मिल रही है. तो जो मोड वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम टू एम माइनस वन के बीच में एग्जिस्ट, एम माइनस वन टू एम के बीच में एग्जिस्ट करेगी. अगर एम आपका इंटीजर है, एम इंटीजर जैसे वहाँ पर इंटीजर था, वहाँ पर एन एम को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एन प्लस बाइनोमियल में एन प्लस वन टू पी से रिप्रेजेंट करते थे. तो इसकी यहाँ पर टू वैल्यूज आपके एग्जिस्ट करेगी, एम और एम माइनस वन. एम इंटीजर नहीं है, एम इंटीजर नहीं, तो इट कंटेन्स ओनली यूनिक वैल्यू, unique model value, that is integral part of m. Okay, now we move toward the questions. This question was asked in GATE EC 2016. The second movement of Poisson random variable is 2. It means x. Okay, 1 second. Let x be a random variable. X be a random variable follows Poisson distribution. ओके, तो आपको क्या दे रखा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर ये दे रखी है, कितने दे रखी है, 2 दे रखी है. आपसे पूछ क्या रहा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है. आपसे क्या पूछा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है. अब जो डेटा आपको आपके पास अवेलेबल है, पहला डेटा मीन जो आपको कितना दे रखा है 2, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है रूट एम. तो मीन ऑफ, सो ओके, मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एम, एंड वेरिएंस that is equal to sigma expectation x square, or that is equal to expectation of x square
एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना दे रखा है ये मुझे नहीं पता, ये आपका एम, ये भी कितना था एम आता है आपका। ओके, कि स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एम है तो मीन वेरिएंस क्या आ जाएगा एम हो जाएगा। ओके ठीक है, ये वैल्यू कितनी देखी एम, ये वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कितना दे रखा है एम, और एम का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपको अब इस क्वाड्रेटिक, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे एम के रूट आ जाएंगे तो आपको एम की दो वैल्यूज मिलेगी, उसमें मोस्ट सुटेबल वैल्यू नहीं है और आपको उसमें आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी आपकी एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, आपको दो वैल्यूज मिलेगी, एक मिलेगी आपको +1 एंड देन अदर वन इज -2। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसको ले लेंगे। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 एंड डेट इज आल्सो इक्वल टू मीन एंड आल्सो इम्प्लाइज एक्सपेक्टेशन। तो आंसर कितना आ गया इसका आपका 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ 3 px इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 px इक्वल टू 4 देन फाइंड px इक्वल टू 7। आपको ये फाइंड करना है। तो आपको जो दे रखा है 3 px इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स px इक्वल टू 4 और बोला क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में p x इक्वल टू r, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, इट इज इक्वल e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन फैक्टोरियल r। सो 3 e टू द पावर माइनस m m टू द पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 e टू द पावर m टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके 3 अब e टू द पावर माइनस m टू पावर 3 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉरी 1 4 e टू द पावर माइनस m टू द पावर 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो e टू द पावर m से e की पावर माइनस m से e की पावर m कैंसिल हो गया, इससे कट के आपका m आ गया। ओके ये कट गया आपका, तो इससे ये कट गया पूरा। ओके 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इससे आपके m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m कितना आ गया, m आपका 3 आ गया, m कितना 3 आ गया। अब आपसे पूछ कर रहा है पी एक्स इक्वल टू 7 पूछ रहा है। सो लगा दिया फॉर्मूला आपने e टू द पावर माइनस m टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ओके अब m की वैल्यू कितनी माइनस का 3, तो m की वैल्यू कितनी 3, तो e टू द पावर माइनस का 3 टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 0.026। ये आपका आंसर आ गया। Now move to our next question. A noisy transmission channel has per digit error probability p इतनी, मतलब each one digit में occurrence of error its probability is 0.01. Calculate the probability of more than one error in 10 received digit. Calculate the probability of more than one error in 10 received digit. देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको 10 रिसीव डिजिट, अगर इसकी जो 10 की जगह ना 10 ये होता है 10,000 या एटलीस्ट 1000 भी होता, ठीक है। तो डैम श्योर है ये जो क्वेश्चन आपका ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से। इसको एक ही डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल इस केस में फेल हो जाता। ओके तो पॉइजन ही फॉलो करते हैं, बाइनोमियल आप यूज नहीं करते। ओके सो लेकिन इस क्वेश्चन को पॉइजन और बाइनोमियल आप दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो मेथड है इसका पॉइजन ही है, पॉइजन। अब ये जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कुछ ऐसी थी 0.01 होती,
पॉइंट। तो आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल से कर सकते थे आंसर, और पॉइजन से भी कर सकते थे, आंसर सेम होता है। लेकिन हाँ, मोस्ट करेक्ट आंसर जो आपका पॉइजन से आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एरर इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन वन, more than 1, it's equal to probability of getting x equal to 2, probability of getting x equal to 3, plus probability of getting x equal to 4, plus up to चलता जा रहा है। ओके, so on, और the counterpart is 1 minus probability of getting more than 1 or at least 1, नहीं sorry, at most 1, the counterpart of more than 1 is at most 1, तो probability at most जहाँ से था एक, तो it is equal to x equal to 0 minus probability of getting x equal to 1, so equal to 1 minus x equal to 0, तो probability x equal to r, that is equal to e to the power minus m to the power r upon factorial r। okay, so e to the power minus m to the power 0 upon factorial 0 minus minus e to the power minus m to the power 1 upon factorial 1, and here m equal to np, and number of bits कितनी है, टाइल्स कितनी, 10 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एरर इज इक्वल टू दिस। हमारे लिए सक्सेस जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है अकर होना, तो दिस बिकम 0.1। ओके, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.1, अब m टू द पावर 0 1 and factorial 0 also 1 minus e to the power minus 0.1 m to the power then m is 0.1 upon factorial 1 is also 1, so 1 minus if you merge this, so 1.1 e to the power minus 0.1, after solving this you will get 0.00467, so this is your correct answer, this question. You can solve this question by the help of binomial distribution, so you will also get similar result। इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हो, तो आंसर आपका कुछ ना कुछ सिमिलर आता है, कुछ कुछ ना कुछ। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए आपका होमवर्क है, आप लोग ट्राई करेंगे कि ये बाइनोमियल से सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा, और कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर लिखेंगे। आप बाइनोमियल से सॉल्व करके इसका आंसर लिखेंगे, आंसर कितना आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, द बिट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेमोरीलेस चैनल, मेमोरीलेस बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल बीएससी। ये जो टॉपिक है ये भी पार्ट है आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी का। ओके, बाइनरी सिमेट्रिक चैनल आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी के अंदर आता है, बट मीन वाइल आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंफॉर्मेशन थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। सो द आपको जो क्वेश्चन दे रखा है, द बिट एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनरी बीएससी चैनल इज 10⁻⁵ एंड 10⁵ बिट्स आर सेंट ओवर द चैनल, इतनी बिट्स भेजेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 बिट इन एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिट विल बी इन एरर, एक से ज़्यादा बिट में भी एरर नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एरर p इज 10⁻⁵ एंड नंबर ऑफ बिट्स और नंबर ऑफ ट्रायल्स 10⁵, तो आप अंतर देख सकते हैं। तो आप वेरी बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि इसमें बाइनोमियल नहीं लगेगा, बाइनोमियल नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत अब अंतर देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10⁵ और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस वेरी वेरी लेस देन, तो इसमें एक ही लगेगा आपका, एक ही डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, वो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, so probability of what is, probability is not more than 1, not more than 1, एक not more than 1, it means
either no error plus either one error. ये तो एरर नहीं होगी, फिर एक एरर होगी. ओके, सो e to the power, so what is the property of x equal to r equal to e to the power minus m to the power r upon factorial r, and m equal to n into p, and here n is tends to power 5 and p tends to minus of 5, that is equal to 1. So e to the power m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो e to the power minus 1. अब 1 to the power 0 अपन 0 फैक्टोरियल प्लस e to the power minus 1 की m 1 है आपका, m कितना 1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. ओके, this will become e to the power minus 1 into 1 की पावर 0 अपन फैक्टोरियल 0, दोनों की वैल्यू 1 होगी, प्लस e to the power minus 1 और 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 e to the power minus 1, ये बन गया 2 बाई ई. तो सॉल्व कर लेंगे इसका पॉइंट, अगर अगर ऑप्शन अगर ई की फॉर्म में देगा तो आंसर ये होगा, अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा. ओके, so it is another type of distribution, that is rectangular distribution or uniform distribution. So this topic we will discuss in tomorrow class. Okay, so I stop this class here. So we will start tomorrow class with this topic, uniform distribution or rectangular distribution. Okay, thank you.